हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर लिख रखे हैं। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया हुआ है। चार्ल्स लॉ होता क्या है वैसे? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इफ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी आइडियल गैस विच इज हैविंग फिक्स्ड क्वांटिटी, इट्स वॉल्यूम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। v इज इक्वल टू के टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k हो गया। v अपॉन t इज इक्वल टू k, दिस इज कांस्टेंट। दैट मींस एनी इनिशियल वैल्यू v1 t1 will be is equal to k. If v upon t is k, then v1 t1 is equal to k. Of course v2 t2 will also equal to k. So this is equation 1, this is equation 2. From left hand side and right hand side we can write v1 upon t1 is equal to v2 upon t2, and pressure and number of moles remain constant. Pressure and number of moles remain constant in this. So this is Charles law mathematical relation. This formula we will use in this video and we'll solve all the types of numericals. Okay, so we'll start the first numerical here. At what temperature will a given mass of a gas occupy volume of 200 liter? Again we need to see the unit. V1 is equal to 200 liter. If it occupies volume of 260 liter at a temperature of 30 degrees Celsius, that means we need to calculate temperature. T1 we need to calculate. And what about V2? V2 is 260 liter and T2 is 30 degrees Celsius. You must change it into Kelvin. Whenever you are going for the numerical calculation, you must change the degree Celsius into Kelvin. That means we need to add 273 Kelvin. If I will add 273, then the degree Celsius will changes into Kelvin. If we need to change Kelvin into degree Celsius, we need to subtract the same. Okay, so T2 will be equal to 30 plus 273. It will be 303 Kelvin. T2 is 303. So what is the formula here? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. You just need to put the values and you will get your T1. यहाँ से T1 निकलेगा। V1 की वैल्यू कितनी है? 200 liters. Make sure you are writing the unit. Upon T1, we need to calculate V2 260 liters, and what about T2? 303 Kelvin. 303 Kelvin. This one will be cross multiply and you will get the answer. I will write here T1 is equal to 200 liter into 303 Kelvin divided by 260 liter. Liter से liter cancel. First unit cancel करना है आपको. Then you can solve this. You will get your answer in Kelvin only. यूनिट्स लिखने बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन पहले पहले आपको पता है, जैसे बॉयल्स लॉ की मैंने आपको वीडियो करवाई है, उसमें भी पहले धीरे धीरे इजी क्वेश्चंस थे, फिर डिफरेंट फॉर्म आनी शुरू हो गई थी। इसी तरह इसमें भी पहले थोड़े से इजी होंगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. If the volume of an ideal gas is tripled at constant pressure, whenever there is constant pressure in the numerical, it is understood that the numerical is based on Charles law. Charles law का numerical है वो, अगर pressure constant, अगर temperature constant दे देते हैं, pressure volume का relation आ जाता है, then Boyle's law. सबसे पहले लॉ में पता होना चाहिए कौन सा लॉ है, कौन सा फॉर्मूला लगना है। आपको ये चीज चेक करनी है कि कांस्टेंट क्या दे रखा है। एक तो आइडियल गैस कांस्टेंट होगी। इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन पढ़ते दोबारा। इफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज ट्रिपल्ड, आई एम चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, देन टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट? तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? फॉर्मूला क्या है? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 because pressure is constant and volume temperature is given. Volume of an ideal gas is tripled. What do you mean me? Suppose first V1 volume is, we will let 1 liter, 1 liter, and V2 will be, it is the triple of V1, triple of V1. अगर आपको नहीं लेट करना तो इस तरह से भी हो जाएगा, सीधा वैल्यू पुट करूंगा। ये देखना, V2 is equal to 3V1 लिख दिया, ट्रिपल ऑफ V1 दिया है। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज ट्रिपल एट कांस्टेंट प्रेशर, देन टेम्परेचर कितना चेंज होगा? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? देखिए V1 एज इट इज, T1, व्हाट इज V2? वी विल राइट इट 3V1। V2 को क्या लिखेंगे? 3V1, इट इज गिवन, एंड हियर आई विल राइट T2। V1 V1 कैंसिल। कैन यू टेल मी द T2 रेशियो? T2 विल बी इज इक्वल टू 3T1। T2 will be equal to 3T1। और हमने कितना लिया था इधर? हमने कितना लिया था? हमने 1 लेट करा था।
1 लेट कर रहा था, तो इसका मतलब क्या आ गया, 3 - 1, T2 चेंज आ जाएगा, 3 - 1 विल बी 2. If it is in percent, then it will be 200%. It will be 200%. इनिशियल मान लिया था तो आंसर आ रहा है 3. तो कितने परसेंट बढ़ रहा है, 200% बढ़ रहा है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा हमको, 100. चेंज निकालना है, याद रखना, यहाँ पे आंसर मत छोड़ देना 3 पे. बॉयल्स लॉ में ऐसे न्यूमेरिकल्स करे थे हमने, इजी से होते हैं, पढ़ने में अगर आपको समय लगी स्टेटमेंट तो 1 मिनट में हो जाएगा. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. 450 ml of oxygen, 450 ml of oxygen gas at 20 डिग्री सेल्सियस is heated. सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम लिख लो, V1 is equal to 450 ml. 20 degree Celsius, T1 is equal to 20 degree Celsius means we need to add 273. It will be 392 Kelvin. You must change it into Kelvin. वहीं कर दो. Is heated to 50 degree Celsius means T2 भी दे रखा है. 50 डिग्री सेल्सियस ये देखिए सर, 50 डिग्री सेल्सियस देखा, मतलब कितना आएगा हमारे पास, 323 केल्विन. ये बन गया. ओके, व्हाट अबाउट V2? व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? न्यू वॉल्यूम V2 निकालना तो निकाल दो, बहुत सिंपल है. वही वैल्यू पुट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा. पीडीएफ दे रखी है, डाउनलोड कर लो. अगर नहीं मिल रही है तो व्हाट्सएप कर दो. पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी दे रखे हैं. आंसर समझने हैं, नहीं हो रहे तो वीडियो देखिए, अदरवाइज फास्ट फॉरवर्ड करके इसके आंसर चेक करिए और जल्दी से निकाल लीजिए. ओके, पुट द वैल्यू V1 अपॉन T1. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. फर्स्ट गिवन लिखेंगे, देन फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे. क्लियर चीज. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ करते हैं हम, इसको खुद से कर लो ट्राई. एट व्हाट टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, दे हैव गिवन द टेम्परेचर, यू मस्ट कैलकुलेट इन डिग्री सेल्सियस. देखिए, means first we will change it into Kelvin, then Kelvin will changes into degree Celsius in the answer. At what temperature will the volume of a gas at 0 degree Celsius? Temperature T1 is 0 degree Celsius, that means we need to add 273, that is 273 Kelvin. At what temperature means T2 we need to calculate. Volume is given. Volume of gas at 0 degree Celsius double itself. वॉल्यूम भी नहीं दिया उसने, डबल वर्ड यूज कर दिया. मतलब अगर हम V1 को V1 ही रख लेंगे, V2 को क्या लिख देंगे, 2V1, 2 times V1. So we will put the value V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 कितना है, as it is लिखेंगे. What is T1? T1 is 273 Kelvin. Okay, what is V2? It is 2V1. V2 is 2V1. V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने V1 को यहाँ पे 1 लेट नहीं करा. वैसे लेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, बट 2V1 लिख देंगे तो V1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेट करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे 1 लेट करोगे तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा. If we are taking that, we are assuming the V1 is 1, then here it will also 1. So if you want to let तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you can write V1 you can cancel, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पर T2 जो मेरे पास आ रहा है 2 into 573, 2 into 573 I think 546 Kelvin आ जाएगा. This is in Kelvin. They have asked at what temperature in degree Celsius you need to change it into degree Celsius, mean you need to subtract 273 and your answer will be 273 degree Celsius. This is the answer. Very simple. So Charles law के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर चेंज हमको निकालना है. इफ 20 ml of hydrogen at 15 degrees Celsius is isobarically expanded. What is isobar here? Isobar, that processes in which pressure kept constant. प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, यही से हमको पता लगेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो लॉ है चार्ल्स लॉ. इजी वाले न्यूमेरिकल है ये तीनों चारों, तो आप अपने खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके कि अगर आपके आंसर निकल देगा या नहीं निकल देगा. और मेरा पूरा विश्वास है 100% आप क्या है ये इसके आंसर निकाल लेंगे बहुत आराम से. चलिए फिर भी करवा देता हूँ फॉर्मूला. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Okay, what is the first volume? 20 ml at 15 degree Celsius. 15 degree means 15 plus 273. 15 plus 273 ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 288 Kelvin. Means this is 288 Kelvin is equal to what is V2? V2 is given 21.38 ml. 21.38 ml. T2 we need to calculate.
So what will be T2 will be is equal to 20 ml into 288 ऊपर आ जाएगा. T2 will be is equal to 288 Kelvin into 21.38 ml अपॉन 20 ml. ये देखिए ml से ml कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे आपका T2 आ जाएगा. किसमें आएगा T2? केल्विन में. यूनिट लगाना मत भूलना. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 20 ml of hydrogen 20 ml of hydrogen measured at 15 डिग्री सेल्सियस are heated to 35 डिग्री सेल्सियस. बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर 20 ml हाइड्रोजन दे रखा है, दैट मीन्स V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 में सीधी वैल्यूज पुट करेंगे. अब V1 is 20, व्हाट इज T1? 15 डिग्री. 15 में 273 प्लस करना है. ये देखो वही आ गया 288. यहाँ आ गया 288 का यहाँ लिख देंगे ऐसे. V2 उसने क्या पूछा? V2 पूछा इस बार. T2 दे रखा है 35 डिग्री. 35 को 273 प्लस कर दो 8308. ये देखिए केल्विन. यू नीड टू कैलकुलेट V2. V2 निकालना है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, 308 केल्विन इंटू 20 ml क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये तो डिवाइड जाएगा 288 केल्विन. केल्विन से केल्विन कैंसिल. जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा? ml में आएगा. यूनिट्स देखो, वैल्यू पुट करो. गिवन लिखना मत भूलना. पहले गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर लिख दो. बस 3-4 स्टेप करो और काम खत्म करो. क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लो, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करो. और ऐसा नहीं है कि इजी है तो छोड़ दो. खुद प्रैक्टिस धीरे धीरे. ये इजी लग रहे हैं तभी आगे जाके जो टफ है वो भी इजी लगेंगे. छोड़ना कुछ नहीं है, करने सारे या न्यूमेरिकल. हमने टाइम कम लेना है, तभी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ सारे के सारे. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. अ शिप सेलिंग ऑन अ पैसिफिक ओशियन हुज टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर दे रखा है T1 23.4 डिग्री सेल्सियस. हम इसमें सीधा 273 ऐड करेंगे. 273 ऐड करा 336729 296.4 केल्विन. P1 आ गया. ओके, अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर. V1 is 2 liter air. What will be the volume at 26.1 degree Celsius? तो T2 भी दे रखा है 26.1. That means we need to add 273 ऐड कर दीजिए. 6397292 299.1 299.1 केल्विन हो गया. ये देखो ये आ गया V1. दिस इज T1, दिस इज T2. यू नीड टू कैलकुलेट. V2 निकालिए, बस काम खत्म. वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला कौन सा? V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2. सर कितना बार लिखोगे फॉर्मूला? हर न्यूमेरिकल में लिखना है भाई. हर न्यूमेरिकल में लिखेंगे तभी याद रहता है, तभी आदत पड़ती है, तभी लिख के क्वेश्चन सही निकलते हैं, तभी हमारी किसी चैप्टर पर मास्टरी होती है. करना तो पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा. मैं खुद लिखता हूँ हर बार फॉर्मूला. फॉर्मूला सेम है, इसमें भी यही लगेगा. क्वेश्चन नंबर 8. What is the increase in volume when the temperature of 800 ml of air? When the temperature of 800 ml of air, 800 ml का मतलब क्या हो गया? 800 ml का मतलब है V1 is equal to 800 ml. ये लीजिए बॉस. Of air increases from 27 डिग्री सेल्सियस टू 47. सीधा दे रखा है. T1 कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस. T2 कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में चेंज करना है. 27 273 ऐड कर दो. कितना हो गया? 300 300 केल्विन. 47 में ऐड कर दो. 47 में ऐड कर दोगे आप 273. कितना हो जाएगा? 320. ये देखो ये यूज करने हैं आप. V1 क्या था? 800 ml अपॉन T1 क्या है? 300 केल्विन. V2 क्या है? निकालना है. T2 क्या है? 320 केल्विन. V2 will be equal to 320 Kelvin into 800 ml अपॉन 300 केल्विन. केल्विन से केल्विन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 16 पर चला जाएगा. 16 इंटू 80 आप सॉल्व कर लीजिए. आपका आंसर आ गया V2. वो भी किसमें आएगा? ml में आ जाएगा. इस तरह से चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन है. थ्योरी भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स करते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्टूडेंट. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ? मैंने कहा थोड़ा सा चार्ल्स लॉ के फिजिकल सिग्निफिकेंस, हम कह सकते हैं डेली लाइफ क्या यूज है, क्या एग्जांपल है, उसके बारे में बात करनी है हमने. सपोज वी आर हैविंग वन हॉट एयर बैलून. यहाँ पर हॉट एयर बैलून है और यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल एयर है. नॉर्मल एयर बैलून. हमें पता है हॉट एयर बैलून जो है वो टेक्नोलॉजी क्या है, उससे जो बैलून है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है. ऐसा क्यों होता है?
जो हॉट एयर बैलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो नॉर्मल एयर जिसमें हमने भरी है बैलून में वो आराम से नीचे बैठा हुआ है। एयर तो भर दी पर नीचे जमीन पर पड़ा है। अगर हॉट भरेंगे तो ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, वो चार्ल्स लॉ के ऊपर ही हमारे पास डिपेंड करता है, और इसी को फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं चार्ल्स लॉ का। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हॉट एयर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है। मतलब इसमें भी जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों में सेम है। मतलब गैस की अमाउंट सेम भरी है, तब भी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे रह रहा है। ऊपर कौन सा जा रहा है, जिसमें हॉट एयर बैलून है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज चार्ल्स लॉ। यही तो पढ़ा है हमने, इतनी देर से न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ मास रिमेन कांस्टेंट, दिस मास रिमेन कांस्टेंट इन बोथ द केस, दोनों केस में हमारे दोनों बैलून्स में मास कांस्टेंट है, बट यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है इस केस में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। उधर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, वहां पर नॉर्मल एयर है। हॉट एयर का मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी, वो लेस डेंसर हो गया ये हमारे पास, लेस डेंसिटी। देखो चार्ल्स लॉ यूज हो रहा है। अगर डेंसिटी कम हो गई तो इधर डेंसिटी ज्यादा है, इधर डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम वाला क्या करेगा, ऊपर को जाना शुरू कर देगा। तो चार्ल्स लॉ की वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हॉट एयर बैलून जो है वो हवा में जाते हैं, और नॉर्मल एयर बैलून जो है वो हमारे पास आराम से पड़े रहते हैं, उसमें सेम मास भरेंगे तब भी। क्लियर हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेयर मास रिमेन कांस्टेंट। मास दोनों में हमने सेम ही भरा था। दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि लॉ एक्चुअल में हमारे पास यूज कहाँ हो रहा है। डेली लाइफ को एग्जांपल से हमको अच्छे से समझ लगता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विल वॉल्यूम ऑफ गिवन मास बिकम्स हाफ। देखो वॉल्यूम हाफ हो रहा है इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बताना है। वॉल्यूम देखो V1 को तो हम V1 ही रहने दे, V2 को क्या लिख दे, हाफ ऑफ V1। देखो डबल, कभी डबल दे देते हैं कभी ट्रिपल दे देते हैं, जो देते हैं यहां लिखो। फॉर्मूला, टेम्परेचर 1 कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 1 कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स वी नीड टू एड 273 केल्विन एंड इट विल बिकम 273 केल्विन। T2 वी नीड टू कैलकुलेट, पुट द वैल्यूज। V1 को क्या पुट करेंगे, V1 ही। T1 को क्या पुट करेंगे हम, 273 केल्विन। व्हाट इज V2, इट इज हाफ ऑफ V1, इट इज हाफ ऑफ V1। ये V1 का क्या है, हाफ है। और डिवाइड बाय कितना था हमारे पास, 273। और T2 तो निकालना है, ये T2 हमको निकालना है, तो जो हाफ हो रहा था उसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये देखिए हाफ हो रहा था तो टू नीचे ही जाना था, उसको नीचे ही लिख दिया। वहां मतलब ये जो टू है टेम्परेचर वाला नहीं है, ये हाफ ऑफ V1 वाला है। V1 से V1 क्या हो जाएगा, कैंसल। व्हाट इज T2, T2 विल बी इक्वल टू 273 केल्विन डिवाइड बाय 2। दिस विल बी योर आंसर इन केल्विन। ये केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब तो ये न्यूमेरिकल्स भी इजी हो गए हमारे लिए, जिसमें स्टेटमेंट में कुछ दिया नहीं होता, बस एक हाफ वर्ड लिख देते हैं या डबल लिख देंगे या ट्रिपल लिख देंगे। अब इसमें उन्होंने हाफ देखा तो उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11th में क्या दे रखा है, अ सैंपल ऑफ गैस ऑफ एयर ऑक्यूपाइड 10 लीटर at 127 degree Celsius. 10 liter means V1 is 10 liter. What is temperature 1? 127 degree Celsius. You need to add 273, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 3 2 3 4। ये देखिए 127 में 273 ऐड होगा, 400 केल्विन बन गया। एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी दे रखा है, बट प्रेशर तो देखो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे प्रोसेस में। अगर 1 है तो बाद में भी 1 ही है, दे दिया वैसे उन्होंने। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल्ड आउट मतलब एयर बाहर गई है, वो निकालनी है, चेंज निकालना है इस बार। व्हेन इट इज कूल्ड टू 23 डिग्री सेल्सियस, -23 है। T2 इज इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। कैसे माइनस होगा हमारे पास, 273 में से 23 हमने निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ 5, यहाँ 2, 250 केल्विन। इट इज पॉजिटिव 250 केल्विन।
-23 डिग्री सेल्सियस वी हैव चेंज इट इनटू 250 केल्विन, केल्विन में चेंज कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, V1 T1 T2 निकालना क्या है, V2 निकालना है, तो निकालिए। V1 इज 10 लीटर अपॉन T1 इज 400 केल्विन is equal to V2, we need to calculate T2, 250 Kelvin. From here, V2 will be is equal to 250 Kelvin into 10 liter upon 400 Kelvin. सॉल्व कर दीजिए, केल्विन से केल्विन कैंसिल, यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ पे 4 है, ऊपर 25 है, V2 आपका आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 4, ये देखिए ऐसे। अब इसको 25 डिवाइड बाय 4 जो आपका आया है ना, यहाँ पर लीटर्स में आया, यस लीटर्स में आया। अब इसको 10 में से माइनस करना है आपको, क्योंकि उसने पूछा है एक्सपेल्ड कितना हुआ है, ये नहीं पूछा एक्सपेल होने के बाद कितना है, ये है वो वॉल्यूम जो एक्सपेल होने के बाद बचा हुआ है। हमको ये उसने कहा है कि कितना निकला है, चेंज पूछा है। तो इनिशियल क्या था 10 लीटर माइनस 25/4 लीटर, इसका जो हमारे पास आएगा चेंज, इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम या एक्सपेल्ड आउट वॉल्यूम, वो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर आपने लीटर्स में लिखना है। यहाँ पे मत छोड़ देना, अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, 1 मार्क का ये होगा। पढ़ा करो पूरा, एक्सपेल्ड आउट लिखा है। तो इस तरह से हमने चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल करे। आगे आएंगे हमारे पास एमॉन्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल, आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल, आर डेरिवेशन, सारा कुछ न्यूमेरिकल आपको अपलोड होने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको पता लग जाए कब कब आपको वीडियोस अपलोड हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।